Hello class 12th. This is the fifth part of chapter 6 stuffing. We are discussing selection process. 2 points of selection process, preliminary screening and selection test. We have discussed in our previous video. Selection test में 5 तरह के हमने टेस्ट देखे थे. एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेट टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. Now the third main point of selection process we'll start discussing. Selection process has 8 steps. Okay, so third step, now after the test employees are called for an interview. Okay, so these are known as employment interview. So who qualify are called for an interview and role of interviewer is to seek informations. ठीक है, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है, इसलिए वो इंटरव्यू के लिए इसको कॉल करता है. एंड इंटरव्यू गिव्स चांस टू कैंडिडेट्स ऑल्सो टू क्लैरिफाई देयर क्वेरीज रिगार्डिंग सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, पोस्टिंग एक्सेट्रा. ओके, आफ्टर दिस reference and background checks is done. In the application form, the candidates are asked for the names of 2 references. है ना, ये बहुत important process है और mostly हर organization 2 reference के लिए बोलता है. चाहे हम भी किसी को अपॉइंट करें तो हम भी उसके references को हम find out करते हैं कि कौन से ऐसे 2 लोगों का रेफरेंस को दे सकता है जो कि रिलायबल हैं. सो हियर ऑल्सो every company asks for 2 references specially. References can be of previous employers or known persons or teachers, universities और professors. ठीक है, और जनरली जैसे हमारे यहाँ जो अटेस्टेशन करवाने का प्रोसीजर है वो भी क्या है, ये रेफरेंस के लिए ही होता है. Okay, so it is verified that all the informations which are provided by the candidate is correct. Okay, now after reference and background checks, the next step comes in selection process is selection decision. ठीक है, बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसका रेफरेंस चेक कर लिया, उसके बाद में उसका सिलेक्शन डिसीजन होता है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं. द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, interview and reference check are included in selection test. Managers select the most suitable candidates from the list. Okay, इसके बाद वो select कर लेते हैं most suitable candidate और बाकियों को waiting list में डाल देते हैं. फिर जो जिसको किया जाता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन हो या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, बट nowadays it also has become a part of selection test because ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एम्प्लॉय जिसको कि 8 आवर्स मिनिमम 8 आवर्स ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करने हैं और अगर उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके मेडिकल बिल्स ही उसको फुलफ़िल करता रहेगा. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है सिलेक्शन प्रोसेस में. ओके, कि मेडिकल एग्जामिनेशन उनका किया जाए. सो बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट. सम ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर फॉर द टेस्ट. ओके, एंड आफ्टर दिस दे आर गिवन द जॉब ऑफर. Now the candidates are given an appointment letter after the medical test. An appointment letter contains terms and conditions of employment, pay scale and other benefits associated with it. Such letters contain a date by which the appointee must report on duty. ठीक है, उसमें डेट भी मेंशन होती है कि उसको ड्यूटी पे कब से रिपोर्ट करना है. कब रिपोर्ट करना है मीन्स कौन से दिन से. ये हो सकता है कि एट प्रेजेंट एम्प्लॉई किसी और जॉब में हो और वहाँ से जब जॉब को वहाँ से उसे रिलीव किया जाएगा तभी उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो न्यू जॉब को ज्वाइन कर सके. ठीक है, तो ये जो
अपॉइंटमेंट डेट है, ये दोनों की जो दोनों से कंसल्ट करके ही उसके बाद में उसको मेंशन किया जाता है. ओके, एंड आफ्टर दिस contract of employment is made, in which all the rules and regulations, job title, duties, responsibilities, date of joining, pay and allowances, working hours, leave rules, and probation period and disciplinary rules all are mentioned. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं. ओके, सो हियर selection process ends. Now let us discuss the difference between recruitment and selection. Two components of staffing process we have discussed. Okay, third component now we will discuss after this, means two component, recruitment, and second is selection we have discussed. So recruitment is a process of searching suitable candidates to fill up vacant job position, whereas selection is the process of screening and selecting the most eligible candidate and offering them job. Now, recruitment aims to create a large pool of applicants, whereas selection aims to ensure that competent candidate is employed. ठीक है, recruitment's nature is a positive process and the selection is a negative process. Okay, recruitment is a simple process but selection is a complex process because it is very difficult to choose the most suitable candidate for the job. ठीक है, थाउजेंड्स एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है एंड इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स भी. रिक्रूटमेंट proceeds the staffing function, okay, but selection starts after recruitment. स्टाफिंग फंक्शन को आगे बढ़ाती है रिक्रूटमेंट, बट सिलेक्शन स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट के बाद. एंड नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. सो देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है वो यहाँ पे मेंटेन होता है. ठीक है ना, कि उसकी क्या सैलरी, कितनी सैलरी होगी, पेमेंट अलाउंसेस कितने होंगे, रूल्स क्या होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिए जाएंगे, कंपनी जो है वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट कौन कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का उसको राइट होगा, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में. सो हियर आर two elements, two components ends. Now the third component of staffing process is the training and development. ठीक है, अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये दोनों ही अलग वर्ड हैं, तो दोनों को ही हमें देखना बहुत ज़रूरी है. ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. एक जॉब करने के लिए जो उसकी जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ है और उसकी नॉलेज है, ठीक है, उनमें उनको इंक्रीज़ करते रहना. जबकि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. ओके, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के लिए एफर्ट्स करता है. Training increases the job skill while development shapes the attitude. Okay, जॉब की पर्टिकुलर स्किल इंक्रीज करती है ट्रेनिंग, जबकि एटीट्यूड पूरा चेंज कर देता है एम्प्लॉय का. ठीक है, इसको देखते हैं एक एग्जांपल से. इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू बेयर द new software, to learn the new software for accounting, to prepare the books, this is the called training.
whereas if he is sent for orientation program to improve motivational and communication skill, this is development. ठीक है, उसको अगर सॉफ्टवेयर के लिए लर्न करने के लिए उसको भेजा गया है तो ये ट्रेनिंग है, बट उसको मोटिवेशनल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल या इसके लिए उसको किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर उसको भेजा गया है तो ये डेवलपमेंट का पार्ट होगा. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे. दैट इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़. दोनों के लिए इसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होगी और दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस से हम डिनाई नहीं कर सकते. दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं. दैट सिस्टमैटिक लर्निंग एंड बेटर दैन हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, हिट और ट्रायल मेथड से ये बेटर है ना, और ये सिस्टमैटिक लर्निंग को प्रमोट करता है. इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ in terms of quality and quantity. It prepares future managers. Okay, it increases morale of employees and better response to fast changing environment. Employees का response better होता जाता है changes के लिए. Okay, अब बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. It helps employees in their career's growth. Okay, career की growth में ये उनको help करता है. It helps to increase in earnings. ठीक है, उनको अगर उनकी स्किल इन्हांस हो रही है, सपोज़ उनमें काउंटिंग स्किल आ रही है, उनमें टाइपिंग स्किल आ रही है, उनमें कंप्यूटर स्किल आ रही है, तो ये उससे उनकी अर्निंग्स में भी इंक्रीमेंट होगा. देन safety of employees is higher as they are more efficient to handle machines and materials. Okay, and last benefit is greater job satisfaction. उनको job satisfaction भी उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उस जॉब से रिलेटेड हर एक नॉलेज उनके पास होगी, हर एक स्किल उनके पास होगी और उनका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा टूवर्ड्स द जॉब. तो इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा. ओके, एंड नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. Methods of training are on the job training and off the job training. So these methods we will discuss in our next part. For today, this much only. Hope you would have got the terms well. Thank you. Have a nice day.